Hello everyone. In this video, I will discuss about some more works of John Keats. I have already made the two videos on John Keats. In my first video, I was discussed the biography of John Keats. In my second video, I discussed about these important works and the summaries. And in this video, I will discuss about the works of John Keats, like the Eve of St. Agnes, on first looking into Chapman's Homer, Endymion, Lamia, Hyphen, La Bailey, Dansen's Mercy. इनकी समरीज के बारे में हम पढ़ेंगे. So let's start. His ninth work, John Keats' ninth work, was The Eve of St. Agnes, which was written in 1819 and published in 1820. Romantic narrative poem of 42 Spenser stanza set in the Middle Age. It means यह एक रोमांटिक नैरेटिव पोएम है. नैरेटिव पोएम्स मतलब होते हैं वह पोएम जो कि एक ऐसा स्टोरी जो कि पोएम्स में लिखी गई है. 42 स्पेंसरियन स्टैंजा है जो स्पेंसर ने दिए थे, वो स्टैंजा में ये लिखी गई है. द टाइटल कम्स फ्रॉम द डे बिफोर द फीस्ट ऑफ St. Agnes. St. Agnes, the patron saint of virgins, died a Matrion in 4th century Rome. The eve fell on 20 January and the feast day on 21st Jan. The divination referred to by Keats in this poem are referred to by John Aubrey in his Miscellaneous 1696 as being associated with St. Agnes night. It means ये जो पोएम है, इस पोएम में द ईव ऑफ St. Agnes के बारे में बताया गया है, यानी कि ये एक डे होता है जो कि 20 जनवरी को हर साल मनाया जाता है. 21 जनवरी को इसकी फ़ीस्ट होती है, उससे एक दिन पहले इसका डे मनाया जाता है. यह डे जो है क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अब ये St. Agnes था कौन? St. Agnes जो था वो एक वर्जन्स का संत था जो कि शहादत हो गई थी जिसकी 4th सेंचुरी रोम में. और इस दिन ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन कोई वर्जन लड़की अगर कुछ रिचुअल्स करती है तो वह अपने सपने में अपने विल बी हस्बैंड को देख सकती है. तो उसी से रिलेटेड ये वर्क है. और जो जॉन किट्स थे, जॉन किट्स ने जॉन अर्बरी का एक वर्क है मिस्कैनियस, इसके अंतर्गत इसके बारे में पढ़ा था और फिर अपनी ये पोएम लिखी थी. बैकग्राउंड: Keats based his poem on the folk belief that one could see her future husband in a dream. एक folk मतलब बिलीफ है दैट कि कोई भी एक फ्यूचर हस्बैंड को ड्रीम में देख सकती है. इफ़ शी परफॉर्म्ड सर्टेन राइट्स ऑन द ईव ऑफ St. Agnes. St. Agnes वाले दिन अगर वह कुछ सर्टेन्स राइट्स करती है, कुछ सर्टेन्स काम करती है, दैट इज़ वह क्या है, शी वुड गो टू बेड, कि वह बेड पे जाएगी. विदाउट एनी सफ़र, बिना किसी डिनर के, undress herself so that she was completely naked and lie on her bed with her hands under the pillow and looking up to the heavens and not to look behind. ठीक है, ये सब उसे करना होगा. Then the proposed husband would appear in her dreams. उसके ड्रीम्स में वो हस्बैंड आएगा. A Scottish version of the rituals would involve young women meeting together on St. Agnes Eve at midnight. They would go one by one into a remote field and throw in some grain, after which they repeated the following rhymes in the prayer of St. Agnes. एक स्कॉटिश वर्जन है जिसके अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है कि यंग वुमेन्स क्या करती हैं, St. Agnes वाले दिन रात को मिलती हैं सारी वुमेन्स, उसके बाद रिमोट फील्ड में जाती हैं, वहाँ पर कुछ जो ग्रेन्स होते हैं, बीज होते हैं, उन्हें फेंकती हैं और ये जो राइम्स हैं, राइम्स को वो पढ़ती है. क्या राइम्स हैं? एग्नेस स्वीट एंड एग्नेस फेयर, हाइदर नाउ रिपेयर बोनी एग्नेस, लेट मी सी द लेड हु इज़ टू मैरी मी. ठीक है. In the original version of his poem, Keats emphasized the young lovers' sexuality. ओरिजिनल वर्जन के अंतर्गत इसमें यंग लवर्स की सेक्सुअलिटी के बारे में बताया गया है. Keats started writing this seminal work while staying in Manchester. में जब वो था तब उसने ये वर्क लिखा था. So the summary of this work is: on the night of Eve St. Agnes, Madeline's family celebrated a night. Madeline's की फैमिली ने वो ये जो दिन है वो सेलिब्रेट किया था. House was full of guests. Madeline wanted to see her lover for Philo in her dream. वह चाहते थे कि अपने लवर को अपने सपने में देखे. So she does all the rituals and go to bed. On that night, उस रात को, Orpheus wanted to go Madeline's room. He approached her room with the help of Angela, who is friendly to his family. यानी कि वो रात को जो
मैडिलाइन के रूम में पहुंच जाता है एंजेला की मदद से। ही अप्रोच मैडिलाइंस रूम, तक वो जाता है। मैडिलाइन थिंक दैट इट इज़ जस्ट अ ड्रीम, उसे लगता है कि सपना है। एंड एट द लास्ट बोथ ऑफ देम एस्केप द कैसल, दोनों के दोनों जो है वो कैसल से भाग जाते हैं। तो ये स्टोरी है इस वर्क की। द नेक्स्ट वर्क वाज ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैम्पमैन्स होमर विच वाज रिटन इन 1816 एंड पब्लिश्ड इन 1816 आल्सो। इट tells the author's astonishment while reading the works of the ancient Greek poet Homer, as freely translated by Elizabethan playwright George Chapman. It means, in this work, author was astonished. Why he was astonished? He was astonished by the work of the Homer, which was translated by the George Chapman. The background of this work is Charles Gordon Clark. Who was Charles Gordon Clark? Charles Gordon Clark was the son of the headmaster of the school in which John Keats was studied, and he was also the friend of John Keats. So Charles Gordon Clark puts Chapman's rigorous and earthly paraphrases in front of Keats. Keats के सामने उसने क्या करा था, ये सारे के सारे जॉर्ज चैम्पियंस के जो भी पैराफ्रेजेस थे वो उसके सामने लेके आया था वो। Keats shouting with delight as some passage of special energy struck his imagination, and while reading his Champion's work, he was so surprised and so astonished by the imagination of the Champion. Next important work was Endymion, which was published in 1818 by Taylor and Hasley in Fleet Street by London. The most important question which जो कि जनरली पूछा जाता है मेन ऑफ द एग्जाम्स इज अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज टेकन फ्रॉम विच वर्क। तो वो एंटीमियन से लिया गया था बिकॉज दिस वर्क बिगन विद द लाइन अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। Written in rhyming couplets in iambic pentameter. What is iambic pentameter? I have already made the video of the important meters like iambic pentameter, iambic rectameter, etc. So many meters जो होते हैं उनके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। Keats based the poem on the Greek myth of Endymion, the shepherd beloved of the moon goddess Selene. The poem elaborates the original story and remains Selene Cynthia. It means this poem is based on the Greek myth of Endymion. Endymion, which was the shepherd, and he loved Selene. Who was Selene? Selene was the Cynthia or the goddess of the moon. Narrative, the story. It starts by a rustic scene of trees, rivers, and shepherds. The shepherds gather around on altar and pray to Pan. The shepherds gather around on the altar. Altar means वेदी जिसे बोलते हैं. And pray to the god Pan. Elder men sit and talk. जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं. However, Endymion, the brain-strict shepherd's prince of St. Latmos, is in a trance-like state. लेकिन जो एंडीमियन है बहुत परेशान है. And not participating in their discourse. उनके डिस्कोर्स में वो भाग नहीं ले रहा. His sister Fiona takes him where he sleeps. After he wakes, he tells Fiona of his encounter with Cynthia and how much he loved her. यानी कि जब वह सो जाता है, सोने के बाद वह उठता है तो वह बताता है पियोना को उसने एक सपना देखा था और वह साइंथिया उससे मिली थी और वह साइंथिया से प्यार करता है. The poem is divided into 4 books. In the first book, Book 1 gives Endymion's account of his dream and his experiences as related to Fiona, which provide the background for the rest of the poem. पहले वर्ग में एंडीमियंस के जो ड्रीम है उसके बारे में बताया जाता है जो कि एक बैकग्राउंड बनाता है पूरी पोएम का. In the book second, Endymion ventured into underworld in search of his love. He encountered Adonis and Venus, a pairing of mortal and immortal, apparently foreshadowing a similar destiny for the mortal Endymion and immortal Paramore. And he goes on to search for his love, and during his journey he encountered Adonis and Venus,
who is the pair of mortal and immortal. In the book third, relieve his enduring love and he begs Moon not to torment him any longer. इसमें उसकी जो दशा है उसके बारे में बताया गया है बुक थर्ड में. As he journeyed through a watery void on the sea floor, there he met Glaucus, freeing the god from the 1,000 years of imprisonment by the witch Circe. मतलब बुक थर्ड में जब वह घूम रहा होता है in the search of his beloved, he met Glaucus, who was the god which was imprisoned by the witch Circe द्वारा जो कैद किया गया इसको वह आज़ाद करा देता है. In the book 4, Endymion falls in love with a beautiful Indian maiden. मेडन मतलब होता है जो समुद्रों में रहती है. उससे वह क्या करता है, उसको प्यार हो जाता है एंडीमियन को. बोथ राइड विंग्ड ब्लैक स्टीड टू माउंट ओलंपियस. दोनों के दोनों माउंट ओलंपियस में जाते हैं. वेयर साइंथिया अवेट्स ओनली फॉर एंडीमियन. यहाँ पर साइंथिया उसका वेट कर रही है एंडीमियन का. टू फोरशेक द गॉडेस फॉर हिज न्यू लव. तो एंडीमियन क्या करता है, एंडीमियन उससे माफ़ी मांगता है गॉडेस से अपने नए लव के लिए कि वह इंडियन मेडन से प्यार करने लगा है. अब एंडीमाइन एंड इंडियन लेडन गर्ल रिटर्न टू अर्थ. वे दोनों वापस अर्थ में आ जाते हैं. द लेटर शी कैन नॉट बी हिज लव. ही इज़ मिजरेबल एंड ही कम्स अपॉन द इंडियन मेडन. उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो इंडियन मेडन बोलती है कि वह उसे प्यार नहीं करती. वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे बाद में यह पता चलता है एंड शी रिलीव दैट शी इज़ इन फैक्ट सिंथिया, कि इंडियन मेडन ही क्या थी, सिंथिया थी. शी देन टेल्स हिम ऑफ हाउ शी ट्राई टू फॉरगेट हिम टू मूव ऑन बट दैट इन द एंड देयर इज़ नॉट वन बट दाई. यानी कि जो लास्ट लाइन है इस पोएम की वो ये है. तो ये भी क्वेश्चन इसमें पूछी जाती है. Next work was Lamia, which was written in 1819 and published in 1820. It was also a narrative poem, a story which was written in the form of a poem. Appeared in the volume Lamia, Isabella and the Eve of St. Agnes and other poems के साथ ही published हुई है. The story tells how the god Hermes hears a nymph who is more beautiful than all. Hermes, searching for the nymph's instinct, comes across Lamia, trapped in the form of serpent. She relieves the previously invisible nymphs to him and in return he restores her human form. She goes to seek a youth of Chronith Lycius while Hermes and his nymph depart. Relationship between Lycius and Lamia is destroyed when the Sake Apollonius relieves Lamia's true identity at their wedding feast, whereupon she seamlessly disappears and Lucius dies of grief. मतलब इस स्टोरी में बताया गया है कि एक गॉड है हर्मस. उसे पता चलता है कि एक नाइफ है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. वह उसको ढूंढने के लिए जाता है. जब वह उसे ढूंढ रहा होता है तो उसे जो है वो लामिया मिलती है. लामिया एक ब्यूटीफुल लड़की है जो कि सरपेंट के फॉर्म में है, यानी सांप के फॉर्म में है. जब वह हरमेस उसे मिलता है लामिया से, तो लामिया कहती है कि उसे उस नाइम के बारे में पता है जो कि जिसको हरमस ढूंढ रहा है, लेकिन वह इस नाइम्स के बारे में उसे तब बताएगी जब वह उसे क्या करेगा, अब एक ब्यूटीफुल औरत बना देगा. उसके बाद क्या होता है, हरमेस अपनी पावर का इस्तेमाल करके लामिया को एक सरपेंट से ब्यूटीफुल वुमेन बना देता है. तब हरमेस और नाइम दोनों डिपार्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं. अब लामिया की स्टोरी है. लामिया को एक बहुत ब्यूटीफुल लड़का मिलता है जिसका नाम है ल्यूसिनस. ठीक है, वह अब ल्यूसिनस ये दोनों आपस में बात करते हैं और इन दोनों शादी करने के लिए तय करते हैं कि वे शादी करेंगे. लेकिन इन दोनों की रिलेशनशिप जो होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है एक जो सन्यासी जिसे बोलते हैं उसके, जिसका नाम है अपोलोनियस. वह क्या करता है, शादी के समय में लामिया की ट्रू आइडेंटिटी बता देता है कि यह एक सरपेंट है, वुमेन नहीं है. और एट द एंड ऑफ द स्टोरी लूसिनस डाइज ऑफ ग्रीफ. ये इसकी स्टोरी है. नेक्स्ट वर्क हाइप्रियन इन 1818 to 1819, अबेंडन्ड एपिक पोयम. मतलब एपिक पोयम है ये, और मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दी गई थी. बेस्ड ऑन द टिटानोमाचियस एंड टेल्स ऑफ द डिस्पेयर ऑफ द टाइटन्स आफ्टर द फॉल ऑफ ओलंपियास. इसमें क्या है इसकी स्टोरी में ये बताया गया है कि पहले टाइटन्स जो हैं वो राज क्या करते थे, लेकिन ओलंपियास वहाँ पर आ गए और टाइटन्स को उनके राज्य से भगा दिया.
उसके बाद केवल एक ही जो शक्तिशाली टाइटन है वो हाइफियन बचता है और सभी इसको मोटिवेट करते हैं कि वह लड़ाई करे ओलंपियास के खिलाफ। तो इसकी स्टोरी में बताया गया है। द लास्ट वर्क was La Belle Dame sans Mercy written in 21st April 1819. It means लाइन का मतलब है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ब्यूटीफुल लेडी बिना किसी दया के। बैलेड है। टाइटल राइट फ्रॉम द टाइटल ऑफ द 15th century poem by एलियन चैट्रियर कॉल्ड ला बेला डैम सेंस मर्सी, मतलब एक पोएम है जो कि एलियन चैटर ने लिखी थी, उससे ये टाइटल लिया गया है। Poem is about a fairy who condemned a knight to an unpleasant fate after she seduced him with her eyes and singing. इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। The speaker come across a knight at arms alone. एक स्पीकर एक राजा से मिलता है जो कि आर्म्स अलोन यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, तलवार वगैरह कुछ नहीं है, एक राजा से मिलता है। स्पीकर asked him what is going on. Knight says that he met a beautiful fairy lady in the field. बताता है कि वह सुंदर लड़की से मिला था एक खेत में। He started hanging out with her. Then she invited him back to her fairy cave. वह उसको इन्वाइट करती है फेरी केव में। But after they were through smooching, she lured him to sleep and he had a nightmare about all the kings and knights and princes that the woman had previously seduced. They were all dead. And then he wake up alone on the side of a hill. यानी कि वो कहती है कि जब वह उसको अपने फेरी केव में बुलाती हैं और वहाँ पर वो स्मूचिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वह उसे सुला देती है राजा को, और उसे सपना आता है कि उन सभी मरे हुए राजाओं का, उन सभी मरे हुए प्रिंसेस का जिसे वुमेन पहले मिल चुकी थी, सेड्यूस कर चुकी थी, और उसके बाद जब वह उठता है तो अपने आप को हिल में पाता है। स्पेंसर आल्सो हैड अ पोएम कॉल्ड द फेरी क्वीन विद द सिमिलर आइडिया। स्पेंसर ने भी यही एक पोएम लिखी थी जो कि सिमिलर आइडिया से थी, ठीक है, 1590 से 96 के बीच में लिखी थी। रेफर टू इन लेटर 123 टू हिज ब्रदर जॉर्ज, से हमें ये पता चलता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द वर्क ऑफ द जॉन कीट्स। थैंक यू।